Good morning to all. Hello. Hello. Sir, you are audible. Please carry on. Good morning. Please. Good morning, sir. Sorry for delay. So, I would like to come directly on topic. Today I will discuss on cycling injury. What are the injury? Most common injury happen in cyclist. Okay. So there are long list of injuries. So starting from neck to toe, then in spine, upper neck injury and lumbars are the most common sites. And the third most common site is knee. And the fourth most common site is wrist. So I will come one by one. So before that, I am briefing about the types of injuries. So basically, we categorize injury in two types. The traumatic injury, that we also called it acute injury, which happens suddenly. It is no, in this injury there is known history. So person had fall. So in this type of injury, there are basically again two types. There is open injury, in which there is breach in skin, matlab break in continuity of skin. That is, examples are laceration, abrasion. You can see in slides. The most common injury in cyclists are this type of open injuries. Again, there is open fracture also. Sometimes the bone get fractured and the bone part is coming outside and puncturing the skin, is called open fracture. So open and closed fracture in acute condition. In open fracture, there is clear cut. We can see the blood is coming out. So there is break in skin continuity. So second injury is closed acute injury. So these injuries are physiotherapist concern. So these are, again, I'm focusing according to cyclist. So these are contusion. Contusion is basically, it's blunt trauma, like something blunt object hits on body parts anywhere, from either in head or in leg or somewhere. So this is in basically, in we cannot see injury from outside, but there is injury in internally. जैसे हम सीधा से बात बोलते हैं कि बॉल आके लगी, क्रिकेट बॉल, और अंदर मांस फट गया और ब्लड इकट्ठा हो गया, नीला नीला दिखता है, दैट इज कंट्यूजन. और स्प्रेन और स्ट्रेन, वी ऑल नो, sprain is injury of ligament, strain is injury of muscle. So in sprain there is ligament injury, in strain there is muscle rupture, you can say. Bursitis is one structure which located close to joints. So in cyclist there is most usable joint is knee. So there is bursa around the knee get inflamed, and that we called is bursitis. The condition is pain around the patella, yeah, kneecap. So there is bursa located around the knees, is get inflamed because of repetitive trauma of the bursa. And the last condition is tendinitis. Tendinitis is basically, it is the structure of muscle continuity. So it inserts, it join muscle to bone. So this structure again get injured because of again repetitive high repetition
or same type monotonous activity cause inflammation to tendon, and the condition known as tendinitis. So before coming to injury, so what are the common factors or what are the common causes which cause injury in cyclist? So we all know the first come to posture. Posture is the more common cause in cyclist. So you can see in slides there were I compared to incorrect posture and correct posture. So in correct posture, you can see basically the spine is the cyclists are using the core muscle while cycling, but in the incorrect posture, you can see that there is slight hump in the chest area. That is the condition we can say the kyphosis like posture. So maintaining correct posture can prevent injury. So there basically, if we want to categorize causes of injury, there are two causes in major. First is internal factor, second is external factor. The internal factors are there is problem in our cyclist body like muscle imbalance, कोई muscle tight है, कोई loose है, कोई किसी में strength नहीं है. So these are the internal factors. When come to external factors, the external factors are like cyclist position on body. So you people, you coaches are know better than me. So in cyclist, the distance between seat to handlebar, distance from seat to pedal bar. So this need to be closely monitored. Time to time modification required, like handle bar grip itself. If there is less cushion, it causes tingling in hand, which is we call the palsy, ulnar palsy, medullary palsy, or the common condition around the hand, in which cyclists feel only tingling कि झंझनाहट सी होती है उंगलियों में. ठीक है, अगर वो कुशन अच्छा हो और हैंड ग्रिप प्रॉपर हो, so उससे we can prevent the this type of injury. Again, come to the saddle part or the seat part. If there is adequate cushioning and the cyclists are using the proper cyclist short which has good cushion or silicone cushion, and the short should be timely replaced. So cyclists can check themselves कि अब किसको चेंज करने की जरूरत है. उसकी भी ड्यूरेशन है. अगर हमने चलो उसको चेंज नहीं किया टाइम से, तो the condition is very common in this cyclist are coccydynomia, tailbone injury. See? Next, so these are the external factor जिसमें हमें मॉडिफिकेशन और टाइम टू टाइम ऑब्जर्वेशन की जरूरत पड़ती है. Okay, so the most important injuries are in cyclists are not acute injury. ठीक है, वो बहुत रेयर होता है कि साइकिलिस्ट गिर गए और सुपरफिशियल इंजरी हो गया. लेकिन जो साइकिलिस्ट में जो कॉमन इंजरी होते हैं बेसिकली क्रोनिक इंजरी है, दैट इज ओवर यूज और रेपिटेटिव इंजरीज. सो क्योंकि लॉन्ग ड्यूरेशन एक्टिविटी है, समटाइम्स देयर इज रोड रेस, समटाइम्स ट्रैक रेस. सो साइकिलिस्ट आर है तो काफी टाइम तक साइकिल पे अपना टाइम स्पेंड करते हैं. So these are the condition usually brought on the increased training time and intensity. अगर बहुत ज्यादा हमारा ट्रेनिंग ड्यूरेशन होएगा और इंटेंसिटी होगा तब जाके ये पेन होते हैं. और ये बहुत इजीली मैनेज हो सकता है अगर टाइमली ये डायग्नोस हो जाए
और रिपोर्ट किया जाए स्पोर्ट्स इंजरी स्पेशलिस्ट को. So these conservatively we can manage. So rarely in rare condition need operative management. In most of condition we need only conservative management, like the in conservative medicine the medicine and physio rehab and the biomechanical correction. These are the factor. These are the things used in conservative care. So I will discuss the low back pain, neck pain और knee pain. ये 3 कंडीशन को आज हम ब्रीफली डिस्कस करेंगे. सो क्रोनिक रेपिटेटिव इंजरीज. अब होता क्या है, अगर हम थोड़ा सा मसल को समझे, बॉडी स्ट्रक्चर को समझे, सो सबसे ज्यादा जो होता है बेसिकली रेपिटेशन से फ्रिक्शन होएगा, प्रेशर होएगा और टेंशन. these 3 कंडीशन है. फ्रिक्शन, प्रेशर एंड टेंडन कॉज इंजरी टू सॉफ्ट टिश्यू और स्ट्रक्चर्स. सो कोई भी इंजरी होता है तो व्हाट हैपन, द फर्स्ट चेंजेस इज इंक्रीज स्वेलिंग. मतलब वहां उस एरिया में स्वेलिंग इंक्रीज हो जाता है, बन जाता है, विच उसकी वजह से क्या होएगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो कम हो जाएगा. तो वहां पे हम बोलते हैं नोसिसेप्टर्स, पेन कॉजिंग रिसेप्टर्स, जो केमिकल रिसेप्टर्स होते हैं वो एक्यूमुलेट होते हैं और वो पेन कॉज करते हैं. फर्दर अगर वो एडिमा टाइमली हील नहीं किया जाए तो वो एडिशन और फाइब्रोसिस बन जाते हैं, जिसको हम स्कार टिश्यू बोलते हैं. वो स्कार टिश्यू जो कि हमारी फ्लेक्सिबिलिटी को कम कर देती है. जैसे हम स्ट्रेच करना चाहते हैं, स्ट्रेचिंग नहीं हो पाता. सो इट्स लाइक एडिशन, अगर टाइमली ना ट्रीट किया जाए तो परमानेंट फ्लेक्सिबिलिटी लॉस हो सकता है. तो स्टार्टिंग फ्रॉम फ्रिक्शन, प्रेशर, टेंडन टू डिक्रीज सर्कुलेशन, नेक्स्ट इज एडिशन फॉर्मेशन एंड द फाइनली देयर इज वीकनेस एंड टाइटनेस ऑफ मसल. सो दिस इज द इंजरी साइकिल ऑफ chronic injuries. Next come to the neck और back pain. So हमने फर्स्ट स्लाइड में डिस्कस किया था, this is posture. In cyclist neck pain की हम पहले बात करें. Because of aerodynamic position of cyclist, so we can see the what happened in aerodynamics. See the in incorrect posture, there is neck in hyper extension. थोड़ा सा हेड ऊपर टिल्ट किया हुआ है, नेक में आर्च ज्यादा बन रहा है कंपेयर टू द करेक्ट पोस्चर cyclist. So what happened, because of this neck extension position, these soft tissue are get tightened. Okay, so yes, and because of aerodynamic posture the posture get disturbed. लेकिन हम साइक्लिस्ट को ये तो नहीं कह सकते ये पोजीशन में नहीं बैठो, लेकिन उसमें थोड़ी सी करेक्शन की रिक्वायरमेंट होती है. इफ अगर साइक्लिस्ट प्रॉपर पोजीशन में नहीं रहता तो ये प्रॉब्लम आ सकती है. तो इसमें आप देखते हैं, हम इसको हम बोलते हैं क्रॉस सिंड्रोम. बेसिकली क्रॉस सिंड्रोम क्या होता है, आप एगोनिस्ट एंटागोनिस्ट का नाम सुने होंगे. द एगोनिस्ट इज प्राइम मूवर और एंटागोनिस्ट इज अपोजिंग द मूवमेंट ऑफ प्राइम मूवर्स. ठीक है, तो अगर नेक एक्सटेंशन टाइट है तो उसका नेक फ्लेक्सर्स लूज होएगा, वीक होएगा. ठीक है, तो हम आप इसमें देखेंगे क्रॉस, आई मेड वन क्रॉस at neck area and the another cross at lumbar spine. So in this you can see there is, हम बात कर रहे थे extension, back of knee, the muscles are these are the upper trapezius and levator scapulae. Diagonal to this there are chest muscles, that are pectoralis, जिसको हम बोलते हैं डेक मशीन पे हम काम करते हैं. पेक्टोरलिस मेजर मसल होते हैं, माइनर मसल होते हैं, और देयर इज वन मोर मसल इज स्टेनोक्लीडोमास्टोइड व्हिच कनेक्ट हेड टू
स्टर्नम, ये डायगोनल मसल होते हैं। तो आपने देखेंगे अगर करेक्ट पोजीशन नहीं होगा तो ये दो मसल्स क्या हो जाएंगे, वीक हो जाएंगे, सॉरी टाइट होंगे। और इसके अपोजिट में आप देखेंगे लोअर ट्राइपेजियस और अपर सर्वाइकल फ्लेक्सर्स, इसमें हम फ्लैट डीप फ्लेक्सर्स मसल्स होते हैं, ये दोनों वीक हो जाएंगे। सो वी हैव टू वर्क ऑन दिस, इसको हम बोलते हैं मस्कुलर इम्बैलेंस। सो नेक्स्ट, because of aerodynamic position, first cause was, the second cause is muscular imbalance. Muscular imbalance को it is concern of physiotherapist कि इसको ठीक करना बहुत जरूरी है और ये क्योरेबल है। अगर टाइमली मेजर लिया जाए, टाइमली डायग्नोसिस हो तो ये बहुत अच्छे से क्योर हो सकता है। बिकॉज ऑफ मस्कुलर इम्बैलेंस there is decreased spinal mobility, so spine की मोबिलिटी कम हो जाएगा। स्पाइन की मोबिलिटी कम होगी तो उसकी स्ट्रेंथ कम हो जाएगा, तो स्पाइन की कोर स्ट्रेंथ कम हो जाएगा फाइन। एंड द लास्ट एंड द एक्सटर्नल फैक्टर्स इज पुअर बायोमैकेनिक्स। यू पीपल नो बेटर बिकॉज ऑफ द सीट का कितना डिस्टेंस होना चाहिए हैंडल बार से, पैडल का कितना डिस्टेंस होना चाहिए सीट से। सो ये ट्रायंगल है, बार है साइक्लिस्ट का, वही उसकी करेक्ट वो उसकी डिस्टेंस प्रॉपर होना चाहिए, सीट टू हैंडल बार, सीट टू पैडल, ठीक है। अगर ये प्रॉपर डिस्टेंस नहीं है तो समवेयर देयर इज प्रॉपर वो परफॉर्मेंस भी नहीं होएगा, बॉडी इंजरी भी होएगा, जिसको हम बोलते हैं फाइनली रिपीटेटिव स्ट्रेन आएगा और इंजरी में कन्वर्ट होएगा। सो दीज आर द कॉमन कॉजेज। सो मस्कुलर इम्बैलेंस को अगर फोकस किया जाए, इसी को करेक्ट कर देंगे तो बाकी सारे कंडीशन, ऑलमोस्ट मोस्ट ऑफ कंडीशन है वो क्योर हो सकता है, ठीक। तो नेक्स्ट कम टू क्रॉस सिंड्रोम में हमने डिस्कस कर लिया सर्वाइकल की। सेम lumbar, in lumbar region again there is cross syndrome. So in this you can see the abdominal muscle in front of abdomen. A diagonal to this is gluteus. Gluteus are group of muscles. These are minimum, medius, maximus. So there is tightness of hip flexors and back extension, and there is weakness of abdominals and glute. So हमें बहुत ज्यादा ग्लूट को स्ट्रेंथन करना है और लोअर एब्डोमेन को स्ट्रेंथन करना है। Then the same times rectus femoris, iliopsoas और उसके डायगोनल thoracolumbar extensions को स्ट्रेच करने की जरूरत है। So we need to stretch that, we will stretch the tight muscle and at the same time we will strengthen the weak muscle. So these two cross syndrome को अगर हम फोकस करें, इस पे वर्कआउट करें, तो साइक्लिस्ट की नी, बैक और नेक पेन को हम काफी हद तक क्योर कर सकते हैं। सो द यू कैन सी द पोस्चर, आप साइक्लिस्ट की पोस्चर को टाइम टू टाइम हमें असेस करने की जरूरत है। देयर इज सेल्फ असेसमेंट टेक्निक, बहुत इजीली असेस कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं? स्टैंडिंग अगेंस्ट वॉल, अगेंस्ट ए वॉल, बैक पूरा वॉल से लगाना है। सो दीज आर द पॉइंट्स विच शुड कम इन कॉन्टैक्ट विद द वॉल आर हेड, शोल्डर एंड बट। ये तीन एक अलाइनमेंट में है, देन वी विल जज द नेक कर्वेचर एंड लंबर स्पाइन कर्वेचर। नेक के पीछे हाथ रख के देखेंगे कितना वो ज्यादा गैप है उसमें। अगर हम आइडियली क्या कह सकें, तो हर इंडिविजुअल का इतना थिकनेस होता है, 2 हैंड थिकनेस, एक के ऊपर एक ओवरलैप करके नेक के नीचे रखें, तो ये आइडियल कर्वेचर है। अगर इसमें कोई भी डिफरेंस है, like you can judge like putting your hand like this, one on another and put it on back of neck,
in this standing position, अगर ये इस कम है तो फ्लैट नेक है, अगर ज्यादा है तो नेक लॉर्डोसिस है. सेम फॉर लोअर बैक. लोअर बैक में भी एटलीस्ट 1 हैंड डिस्टेंस होना चाहिए. अगर उससे ज्यादा है तो लॉर्डोसिस होएगा, अगर कम है तो फ्लैट बैक होएगा. तो ये असेसमेंट टाइम टू टाइम आई पर्सनली सजेस्ट कि 15 दिन में एक बार असेस करने की जरूरत है. ये कोई टाइम बाउंड नहीं है, आप चाहो तो टाइमली डेली कर सकते हो. तो यू कैन डेली असेसमेंट ऑफ योर पोस्चर. सिंपली यू हैव टू स्टैंड अगेंस्ट वॉल एंड मेंटेन द हेड, शोल्डर एंड बट कॉन्टैक्ट विथ वॉल एंड मेक श्योर द फुट जो हील डिस्टेंस है वो एटलीस्ट 6 इंच होना चाहिए वॉल से. अदरवाइज क्या होएगा, अगर हील लगाने की कोशिश करेंगे तो लॉर्डोसिस बढ़ जाएगा, लंबर स्पाइन कर्वेचर और बढ़ जाएगा. सो दिस इज असेसमेंट, सेल्फ असेसमेंट पिक्चर. आप अपने साइक्लिस्ट को टाइम टू टाइम इसको इस पोजीशन में करके आप चेक कर सकते हैं कि उसके नेक और बैक, लोअर बैक में कोई पोस्चरल चेंजेस तो नहीं हुआ. हाँ. सो हमने अभी बात किया था ये कंडीशंस को. तो नेक्स्ट है, तो अब बिकॉज ऑफ दिस मस्कुलर इम्बैलेंस देयर इज जॉइंट इमोबिलिटी. तो वी नीड टू इम्प्रूव द जॉइंट मूवमेंट. हम उसकी मोबिलिटी इंप्रूव करेंगे. एंड सेकंड स्टेप, वी विल स्ट्रेंथन द वीक मसल्स. सो स्पाइन में कैट और कैमल स्ट्रेच इज वेरी की एक्सरसाइजेज फॉर नॉट ओनली साइक्लिस्ट, सबके लिए इंपॉर्टेंट है. अब नेक्स्ट, अब कैट कैमल तो हम सबको पता है कि कैसे करना है, लेकिन उसके बाद जो नेक्स्ट एक्सरसाइज आता है दैट इज चिन टक, स्पेशली फॉर नेक. यू कैन सी इन स्लाइड्स द पर्सन इज स्टैंडिंग अगेंस्ट वॉल, head and shoulder in contact, and he is trying to do chin down, moving chin down with maintaining the head contact. इसमें क्या है, आप देखेंगे पीछे नेक का जो कर्वेचर है वो फ्लैट होएगा. यू कैन ट्राई ऑन योरसेल्फ. तो इसमें आप नेक एक्सटेंशंस को स्ट्रेच करेंगे, जो कि साइक्लिस्ट के लिए बहुत जरूरी है. आई पर्सनली रिकमेंड ये साइक्लिस्ट रोज करे आफ्टर ट्रेनिंग, चाहे वो 2 बार करते हैं या 1 बार करते हैं, लेकिन एटलीस्ट 3 to 5 रेपिटेशन विथ 20 सेकंड होल्ड. एक बार अगर हमने चिन टक किया, 20 सेकंड तक होल्ड करना है, देन रिलीज इट, रिपीट इट एटलीस्ट 3 to 5 रेपिटेशन. बहुत अच्छा फ्लेक्सिबिलिटी आएगा और यू कैन ब्रेक दिस मस्कुलर इम्बैलेंस क्रॉस सिंड्रोम. और आपको ये एक्सरसाइज प्रिवेंटिव एज वेल एज थेरेपेटिक मेजर्स है. आप इसको ऐसा करो कि आप इसके अपने डेली रूटीन में ड्यूरिंग कूल डाउन ये एक्सरसाइज बहुत जरूरी है. इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, की एक्सरसाइज है नेक के लिए, नेक कंडीशन के लिए. सो नेक्स्ट कम टू प्रोग्रेशन ऑफ दिस एक्सरसाइज. अब हम इसको प्रोग्रेसिव कैसे करें. In first picture you can see this person is again doing chin tuck exercise. So person can do in lying also, लेट के भी. और इसमें हेड कांटेक्ट लूज करने का कोई चांस नहीं रहता. आप बिल्कुल हेड और शोल्डर कांटेक्ट में, चिन को ग्रेजुअली नीचे करना है. सो बेसिकली यू आर लेंथनिंग द नेक, पीछे से लंबा हो रहा है. ओके. सो फर्दर प्रोग्रेशन इन, इसको हम बोलते हैं डॉग पोजीशन और कैट पोजीशन. इसमें भी चिन टक किया जा सकता है. ठीक है. सो अगर इस पोजीशन में चिन टक करने से, आपने देखे अपर ऊपर से एक एरो मैंने दिखाया जिसको अपर बैक फॉल, 2 birds फ्लो. सो ये क्रॉस सिंड्रोम को ब्रेक करता है. सो दीज आर द प्रोग्रेसिव स्टेप्स. हमने चिन टक किया, स्टैंडिंग में कर सकते हैं, लाइंग में कर सकते हैं, नेक्स्ट हम क्वाड्रीपॉट में कर सकते हैं. And further we can put some resistance band, जो हम थेरा बैंड या
एक्सरसाइज, रेजिस्टेंस एक्सरसाइज बैड बोलते हैं, उसके साथ ये एक्सरसाइजेस कर सकते हैं। सो नेक्स्ट कम टू ब्रिज डॉग एक्सरसाइज। ब्रिज डॉग एक्सरसाइज इज फॉर बोथ lumbar or cervical both conditions. Maintaining dog position or raising alternate arm and leg. So first step is dog position, second step is alternate arm and leg raise. और ये बहुत ज्यादा रेज नहीं होना चाहिए। मैंने देखा है वो क्या करते हैं, लेग इतना ज्यादा लेग कर लिया कि लंबर स्पाइन पे कर्व बन गया, कर्व बन गया। ज्यादा कर्व बनेगा वो किंक होता है, तो वहां पे लंबर पे स्ट्रेन पड़ेगा और आप करेक्ट करने की जगह आप इंजरी कर सकते हो। सो बेसिकली स्पाइन बॉडी से ज्यादा आर्म को भी नहीं लिफ्ट करना, बॉडी से ऊपर लेग भी लिफ्ट नहीं करना, ठीक है सर। नेक्स्ट इज, हम इसको बोलते हैं फ्रॉम इसेंट्रिक टू कॉन्सेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। इसमें आपने देखा होगा नी को टूवर्ड्स चेस्ट ले गए, फिर एक्सटेंशन में ले जाएंगे। तो these are the progressive step: dog, bridge dog position, alternate leg arm raise, followed by eccentric to concentric contractions. Again, इसको हम ब्रिज डॉग को प्रोग्रेशन कर सकते हैं, एडवांस फॉर्म में कर सकते हैं। टू ऐड सम इलास्टिक बैंड को जिस लेग और आर्म को रेज करना है, एक में लेग के साथ फिक्स कर दिया, दूसरे को आर्म के साथ फिक्स कर दिया, एंड द सेम मूवमेंट हम फॉलो कर सकते हैं। अगर ये एक साथ आर्म और लेग नहीं हो रहा है तो हम पहले इनिशियली सिर्फ आर्म में करेंगे और इन लेग में करेंगे, फिर उसको दोनों को क्लब करेंगे। तो द सेंटर इमेज you see is the toughest exercise. So you can start with the left lower one, next progression is right lower one, and the finally you can achieve this. So अगर हम किसी चीज को स्किप करते हैं ना किसी लेवल को, तो इंजरी होने की चांसेस ज्यादा होता है और हम उसको अच्छे से परफॉर्म नहीं कर सकते। तो मेरे पर्सनली यही सजेशन है कि आप ना उसको लेवल को स्किप ना करो, चाहे 2 या 4, 3 ही करो, उसके बाद थर्ड को। अगर हम थर्ड को ट्राई करेंगे, थर्ड लेवल को, तो देयर इज चांसेस ऑफ इंजरी। ओके, सो वन मोर मसल वेरी इंपॉर्टेंट मसल, लैटिस्मस डॉर्साई, इसको हम मंकी मसल भी बोलते हैं। ये मसल है जो लोअर एक्सट्रीमिटी को और अपर एक्सट्रीमिटी, मतलब हिप से स्टार्ट होके ये शोल्डर के आर्म तक जाता है, कनेक्टेड है। तो ये मसल साइक्लिस्ट में ना स्ट्रेच पोजीशन में रहता है, बिकॉज ऑफ द हैंडल बार पोजीशन, बिकॉज ऑफ एरोडायनेमिक पोजीशन। तो हमें इसको स्ट्रेंथन करने की जरूरत है। अगर इसको स्ट्रेंथन करेंगे ना तो पूरा फुल स्पाइन स्ट्रेंथ होएगा। मैंने इसमें देखा, मैंने वन साइड को कॉन्ट्रैक्ट कराने की कोशिश किया, जिसमें एरो देखेंगे। आपने कुछ नहीं करना, शोल्डर बैक करना है और ड्रॉप करना है। दिस इन लाइंग, इन प्रोन लाइंग, सिंपली यू कैन डू, आर्म को ना, दोनों आर्म को बैक ऑफ नी की तरफ क्लोज ले जाना है विथ लिफ्टिंग नेक एंड शोल्डर गर्डल पूरा। तो इसमें आप वो दोनों लैटिस्मस बाइलेटरल, दोनों साइड की लैटिस्मस डोर्साई एक साथ काम करेगा और फुल स्पाइन एक्सटेंशन एक्सरसाइज बोलते हैं हम। सो दिस इज अगेन वेरी हेल्पफुल, और ये साइक्लिस्ट को करने की जरूरत है इस एक्सरसाइज को। नेक्स्ट हमने बात तो लोअर बैक में जो मसल टाइट होते हैं, दैट इज इलियोपसास, हिप फ्लेक्सर्स बोलते हैं, ठीक है। लंज पोजीशन में इसको स्ट्रेचिंग कर सकते हैं, बहुत अच्छा स्ट्रेच। जितना लंज हम बढ़ाते जाएंगे, आप जो देख रहे हैं, जो जिस लेग की नीलिंग हो रही है उस साइड का मसल स्ट्रेच होएगा। जो पैर का नी फ्लोर कांटेक्ट में है
उस साइड की इलियोसॉस को स्ट्रेच करना है। और इसमें आप थोड़ा और प्रोग्रेशन करना चाहते हैं तो आप जो जितना लंज आप इंक्रीज करेंगे, मतलब नी और हील डिस्टेंस जितना ज्यादा होएगा, हाँ, उतना ज्यादा स्ट्रेच होएगा ये मसल। सो नेक्स्ट कम टू कोर एक्सरसाइज। हम कोर करते हैं तो कोर में मैंने देखा है प्लैंक्स करते हैं। प्लैंक्स पे आजकल बहुत फोकस है लोगों को, प्लैंक्स कर रहे हैं, लेकिन प्लैंक्स के अलावा भी बहुत सारे एक्सरसाइज है जिससे हमें कोर को डिफिकल्ट बनाया जा सकता है। हमारे पास बहुत है जिसको हम बोलते हैं या तो फिजियो बॉल बोलते हैं या बैलेंस बॉल बोलते हैं। इसका यूज लोग अभी भी प्रॉपर नहीं कर पा रहे। बहुत बहुत लोग यूज करते हैं, लेकिन इस पे बैक की कोर एक्सरसाइज बहुत अच्छा है। आपने इसमें देखो, स्टार्टिंग फ्रॉम द ब्रिजिंग, ठीक है, पहले ब्रिज करवाया मैंने विदाउट एनी असिस्टेड डिवाइस, सिंपल फ्लोर पे इस तरह से क्रूक लाइन में लेट गया और बट एरिया को लिफ्ट करना है, पेल्विस को लिफ्ट करना है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट प्रोग्रेशन होता है एक लेग के साथ लिफ्ट करना, ठीक है। अगर सेम एक्सरसाइज को बॉल पे किया जाए तो और लेवल डिफिकल्ट हो जाएगी। फिर उसमें दोनों लेग के नीचे बॉल रखना है, फिर वन लेग ऑल्टरनेट लेग के नीचे बॉल रखना है। सो दीज आर ब्रिजिंग एक्सरसाइज। इसमें आप देखें ये सिर्फ हिप की एक्सरसाइज नहीं है, इसको हम बोलते हैं नी से लेके जितना एरिया लिफ्ट हो रहा है वो सारे मसल कॉन्ट्रैक्ट कर। बहुत अच्छा कोर एक्सरसाइज। सो अगेन सियाटिका का कंडीशन सबने सुना है, इट्स ए वेरी कॉमन कंडीशन। हम सियाटिका बोलते हैं या स्लिप डिस्क भी बोलते हैं लोग, लेकिन सियाटिका है वो डिस्क के नहीं, उसके नीचे नर्व पाथवे में कहीं वो ट्रैप होता है और उस पर दबाव पड़ता है, जिसको हम बोलते हैं एक मसल है जो इसको दबाव डालता है, दैट इज पायरिफॉर्मिक मसल। ये हिप की रोटेशन करता है, ठीक है। इंटरनल और एक्सटर्नल रोटेशन दो मूवमेंट होते हैं, तो ये स्ट्रॉन्ग एक्सटर्नल रोटेटर्स है, तो इसको हमें स्ट्रेच करने की जरूरत है। सो पायरिफॉर्मिस मसल स्ट्रेचिंग थोड़ा सा ट्रिकी है। इसमें क्या करना है, सॉरी मैं इसमें इमेज डालना भूल गया इसका। ओके, सो रोटेटर्स मसल्स है, हिप की रोटेशन जितना ज्यादा होएगा उतना ये स्ट्रेच होएगा। नेक्स्ट कम टू नी पेन। नी पेन again is the common condition. So there are three types of injury around the knee, जिसको हम एक तो बोलते हैं साइक्लिस्ट नी, दूसरा हम बोलते हैं रनर्स नी, और तीसरा देते हैं हैमस्ट्रिंग टेंडिनोपैथी। साइक्लिस्ट नी इज कंडीशन इन विच देयर चपनी के अराउंड, पटेला के अराउंड पेन होएगा। ये उसके सराउंडिंग में हो सकता है, उसके नीचे हो सकता है। अगर पटेला के नीचे हो रहा है तो पटेलर टेंडनाइटिस है, मतलब पटेला क्वाड्रिसेप्स का टेंडन है वो इंजर्ड हो गया, और सराउंडिंग में है तो पटेलोफिमोरल पेन है, वो साइक्लिस्ट नी है। एंड द सेकंड वन जो हम रनर्स नी की बात कर रहे हैं, एक बैंड है आईटी बैंड, इलियोटिबियल बैंड, वो अगेन हिप बोन से स्टार्ट होता है और नी जॉइंट पे टिबिया पे एंड होता है। तो ये आउटर साइड ऑफ नी पेन, मतलब बाहर की तरफ अगर पेन हो रहा है तो इंडिकेशन ऑफ रनर्स नी हम कर सकते हैं। अगर कंफर्म करना है तो वो क्लिनिशियन ही कंफर्म कर सकते हैं कि एक्चुअल में रनर्स नी है और देयर इज समथिंग लिगामेंट इंजरी, क्योंकि वहाँ पे एक लिगामेंट भी होता है जिसको हम बोलते हैं लैटरल कोलैटरल लिगामेंट, ठीक है। और सेम एंड टेंडिनोपैथी, हैमस्ट्रिंग टेंडिनोपैथी अगेन मोस्ट कॉमन। इसका जो मेन कारण है, अगर साइकिल की हाइट ज्यादा है जिसमें ऑलमोस्ट टोज से पैडल हो रहा है, तो अब जब वो नी फ्लेक्शन में आता है तो हैमस्ट्रिंग टेंडन को बहुत एफर्ट करना पड़ता है।
तो वो इससे बार बार रेपिटेशन होएगा, फ्रिक्शन होएगा और वो टेंडन इन्फ्लेम्ड हो जाए। तो अब ये साइकिल की हाइट की एडजस्टमेंट बहुत जरूरी है। मैं एक सिंपल सा स्टोरी सुनाना चाहता हूँ। एक साइकिलिस्ट मेरे पास एक दिन आए थे। उन्होंने बोला सर 2-3 दिन से ना मेरे को नी में ना पटेला के अराउंड पेन हो रहा है। बोला क्या किया था? कहते साइकिलिंग किया था, मैं साइकिलिस्ट हूँ। तो मैंने बस सिंपल सा पूछा कि आपने साइकिल चेंज किया? उन्होंने बोला हाँ जी। साइकिल चेंज किया? कहते हाँ मैंने छोटा सा साइकिल यूज किया। तो एक सिंपल सा इंडिकेशन है, अगर हम हिस्ट्री लेते हैं पेशेंट की तो वहीं से पता चल जाता है कॉज ऑफ इंजरी, क्या कारण था इसका। तो साइकिलिस्ट ने बोला हाँ सर मैंने चेंज किया था, और वो ये मेरी बात समझ गया। उनका कहता नहीं मैं वो चेंज कर दूंगा साइकिल, मैं ठीक हो जाऊंगा। और 2-3 दिन बाद वो अगर साइकिल चेंज करने से तो वो ठीक हो गया। तो ये बायोमैकेनिकल करेक्शन है जिसमें आपको सिंपल छोटे से करेक्शन करने की जरूरत है और वी कैन प्रिवेंट द इंजरी। ओके, so in slide we can see the knee structures. So in front you can see patella, and above the patella there is quadriceps, red structure of the flesh, red quadriceps muscles, and the white structure is tendon, जो कि टिबिया पे नीचे आ रहा है। तो ये नीचे जो टिबिया के नीचे आप जहाँ पे ये एंड हो रहा है वहां पे टेंडिनोपैथी होता है, मतलब चपनी के नीचे। और बैक ऑफ नी में आप देखें हैमस्ट्रिंग मसल को अगर हम ड्रॉ करें ऊपर से नीचे तो ये फिबुला बोन पे इंसर्ट करता है। तो ये मसल है जहाँ पे वाइट स्ट्रक्चर है, वो टेंडन है। वो रेपिटेशन के साथ इंजरी हो जाता है, चाहे वो रेपिटेशन ज्यादा एफर्ट लगने से हो या लॉन्ग ड्यूरेशन साइकिलिंग से हो। So these are the condition in which these are the 3 condition basically साइक्लिस्ट में कॉमन होते हैं। So again हम मस्कुलर इम्बैलेंस पे ही फोकस करते हैं। तो अगर इसमें अगेन मसल्स हैं वो जो वीक होते हैं और टाइट कौन कौन से होते हैं ये जानने की जरूरत है। आप क्वाड्रिसेप और को हम बहुत ज्यादा यूज करते हैं, हैमस्ट्रिंग को यूज करते हैं, और थोड़ा इलियोसवास काफ मसल यूज होता है। तो इसमें हमें क्वाड्स, अगेन अगर नी इंजरी सिर्फ नी पे फोकस करने की जरूरत नहीं है, हमें हिप को भी फोकस करने की जरूरत पड़ती है। क्वाड्स बहुत वीक होता है तो अगेन क्वाड्स और ग्लूट, बैक ऑफ हिप मसल, ग्लूटियस को स्ट्रेंथन करने की जरूरत है क्वाड्स को। और सेम टाइम्स हिप फ्लेक्सर्स, जो इलियोसवास की बात किया था, लंज एक्सरसाइज, लंज स्ट्रेच, इलियोसवास को स्ट्रेच करने की जरूरत है और हैमस्ट्रिंग की स्ट्रेचिंग की जरूरत है। सो मोर फोकस इन स्ट्रेंथनिंग और क्वाड्स और ग्लूट, एंड सेम टाइम स्ट्रेचिंग ज्यादा हम फोकस करेंगे इलियोसवास और हैमस्ट्रिंग पे। एंड द लास्टली जो मैंने बोला बायोमैकेनिकल करेक्शन, वो आप देखो इसकी हाइट सुटेबल है कि नहीं वो साइक्लिस्ट के लिए। सो आईटी बैंड, इलियोटिबियल बैंड, ये बहुत कॉमन कंडीशन है जो कि बहुत ज्यादा साइकिलिंग होने पे होता है, और इसकी स्ट्रेचिंग थोड़ी सी ट्रिकी होता है। आप देखो इमेज देखेंगे तो आपने जो रेड मार्क है दैट इज कंटिन्यूटी ऑफ इलियोटिबियल बैंड। सो जिस लेग को स्ट्रेच करना है उसको हम पीछे रखेंगे और पूरा क्रॉस होने देंगे अपोजिट साइड। एंड और ट्रंक की पार्ट है, ट्रंक को हम बेंड करेंगे जिधर को हमने लेग क्रॉस किया था उस तरफ। तो इस तरह से आप स्ट्रेच कर सकते हैं आईटी बैंड को। और आईटी बैंड, इलियोसवास, हैमस्ट्रिंग, ये 3 कूल डाउन फेज में जरूरी है, रूटीन में होना चाहिए। ठीक है। मोस्ट ऑफ जो रेपिटेटिव इंजरी है ना बेसिकली टाइटनेस की वजह से ही होता है, और हम अभी भी कूल डाउन को उतना इंपॉर्टेंस नहीं देते एथलीट, जब तक कि हमारे कोच सामने नहीं बैठे हैं वो करते ही नहीं, जैसे कोच निकल गए वो छोड़ देते हैं। तो फोकस हमें कूल डाउन करने की है, चाहे जैसे भी हो। एक गुरु होना जरूरी है, अगर गुरु नहीं है तो वो सिंसियरली नहीं कर पाते, चाहे वो कोच हो, चाहे फिटनेस ट्रेनर हो, चाहे फिजियो हो, वो प्रेजेंस की जरूरत होती। सो ऑल्टरनेटिव वे टू स्ट्रेच द आरटी बैंड इज
फिजियो भी है, फिजियोथेरेपिस्ट ने स्ट्रेच करना है तो वो प्रॉपर एंगल से के साथ वो हम आईटी बैट को स्ट्रेच करते हैं। और अगर ये टाइट होगा तो सिर्फ हमारा नी पेन नहीं होगा, ये टाइट होगा तो बैक पेन भी होएगा, क्योंकि ये मसल बैक तक जा रहा है और हिप तक जा रहा है। ठीक है। हैमस्ट्रिंग पेन, हैमस्ट्रिंग पेन का मेन कारण है एक्सेसिव लोड ऑन मसल टेंडन व्हाइल नी एक्सटेंडेड, मतलब बहुत ज्यादा, जैसे मैंने बोला कि पेडल की हाइट और सीट की डिस्टेंस ज्यादा है, उस केस में जब उसको नी बेंडिंग इनिशिएट करना होता है तो उसमें बहुत ज्यादा फोर्स लगाना पड़ता है मसल को, इस केस में इंजरी हो जाता है। और अगेन मस्कुलर इम्बैलेंस और एसिमेट्री, मतलब कि अगर हम बात करें हैमस्ट्रिंग और क्वाड्स की रेशियो का, कितना होना चाहिए स्ट्रेंथ रेशियो, अगर 2 kg हैमस्ट्रिंग क्वाड से उठा रहा है तो कम से कम 1 kg हैमस्ट्रिंग से होना चाहिए। अगर उतना भी नहीं कर पा रहा तो ये मस्कुलर इम्बैलेंस टेस्टिंग है। जितना 1:1 का रेशियो होगा और अच्छी बात है, लेकिन एटलीस्ट 50% स्ट्रेंथ होना चाहिए उसके एंटागोनिस्ट में। ओके। और प्रीवियस इंजरी, हम इतने देखते हैं, अगर पेन ठीक हो गया तो इंजरी ठीक हो गया, ये हमारा मानना है। लेकिन अभी मैं ये कहता हूँ, ये पेन ठीक होना इज नॉट इंडिकेशन टू क्योर ऑफ इंजरी। उसके बहुत सारे फैक्टर हैं, पेन तो सबसाइड हो जाएगा लेकिन उसके सराउंडिंग मसल वीक हो गए, टाइट हो गए, बैलेंस पुअर है, कोऑर्डिनेशन नहीं है, तो ये सब चीज स्किप हो जाता है। या तो हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि या प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिलता एथलीट को, या तो वो जल्दी से वापस अपने गेम में जाना चाहते हैं। तो हमें प्रीवियस इंजरी को क्योर करने की जरूरत है। अगर वो पूरी तरह से क्योर हो जाएगा तो दोबारा नहीं होगा, नहीं तो वो बार बार होएगा, इंजरी होएगा। ठीक है। एंड द लास्टली, सिट टू हाई और too far back is the again common biomechanical error in hamstring pain. So treatment of hamstring pain is basically, हम तो स्ट्रेंथनिंग तो करते हैं लेकिन इसेंट्रिक स्ट्रेंथनिंग पे फोकस करने की जरूरत है। इसेंट्रिक स्ट्रेंथनिंग क्या होता है, मसल कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है लेंथन से स्टार्ट होके, जैसे हम काफ, पहले हम काफ की बात करें, काफ की जो इजी होता है स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेज इसेंट्रिक, स्टेयर पे हम खड़े हो जाएंगे, स्टेयर के एज पे, और हील को डाउन करना है पहले, जितना नीचे डाउन होएगा उतना काफ मसल स्ट्रेच होता है। उसके बाद हमें बॉडी को लिफ्ट करना है। एक्सरसाइज है तो इसमें स्ट्रेंथनिंग जल्दी होता है, स्ट्रेंथ जल्दी आता है। और तो हमें हैमस्ट्रिंग में भी आपको, अब ये कैसे करें हैमस्ट्रिंग को, तो आपने देखा होगा हमने बॉल ब्रिज करवाया था, बॉल ब्रिज, यस, बॉल ब्रिज में अगेन अगर हम नी को इसमें फोल्ड करते जाएं ब्रिजिंग के साथ तो इस सेट से कॉन्सेंट्रेट होता है। ठीक है। तो ये एक्सरसाइजेज इम्प्लीमेंट करने की जरूरत है एथलीट में। और ग्लूट ब्रिज और हिप हिंज, मतलब हिप जॉइंट पे भी उतना ही फोकस करना है। या हैमस्ट्रिंग को हम अगर टेंडन इंजरी है तो हमें इलियोश्वास पे फोकस करने की जरूरत है, और हिप एबडक्टर्स पे, जिसको हम बोलते हैं साइड लेग एक्सरसाइज। तो हिप अगेन इम्बैलेंस की बात कर रहे हैं तो हैमस्ट्रिंग का डायगोनल मसल है इलियोश्वास, उसकी स्ट्रेचिंग होनी चाहिए, और ग्लूट की स्ट्रेंथनिंग होनी चाहिए, जिससे ग्लूट ब्रिज में होता है, और मैकेनिकल करेक्शन की जरूरत है। So now come to on the hand injury. So there is tingling condition in finger, या तो वो थंब के साइड हो सकता है या लिटिल फिंगर के साथ हो सकता है। अगर थंब की साइड हो रहा है तो अल्नर नर्व है, और सॉरी मीडियन नर्व है, और लिटिल फिंगर की तरफ हो रहा है तो अल्नर नर्व है। तो ये नर्वनेस हो सकते हैं। इसके मेन जो प्रॉपर
कॉज है इम्प्रॉपर पोजिशनिंग ऑफ हैंडल बार एंड पुअर वेट डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब कि हैंड पे कहाँ वेट आ रहा है, मतलब हैंड में जो वेट एरिया बना है वो ये है, जिसको हम थिनर बोलते हैं, और ये हाइपोथिनर। अगर यहाँ ज्यादा वेट आएगा तो ये इधर टिंगलिंग होएगा, इधर ज्यादा वेट आएगा तो यहाँ टिंगलिंग होएगा, मिडिल और नर्व। तो प्रॉपर कुशनिंग ऑफ हैंडल बार एंड इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेट थिनर हाइपोथिनर पे इज इम्पोर्टेंट। अगर उसको हम करेक्ट कर दें तो ये टिंगलिंग और नर्व कंप्रेशन कंडीशन को है हम क्योर कर सकते हैं। ठीक है। और सेकेंडली होता है बहुत ज्यादा लंबा ड्राइव हो या लॉन्ग रफ टेरेन हो, उस कंडीशन में ज्यादा हैंड वाइब्रेशन होता है, कुशनिंग कम है, तो उस केस में नर्व इंजरी हो सकती है। तो इसमें सिंपली मॉडिफिकेशन की जरूरत है और रिस्ट की स्ट्रेचिंग की जरूरत है। प्रॉपर पैडिंग होना चाहिए, प्रॉपर ग्लव्स पहनना होना चाहिए, रिस्ट की और फिंगर मोबिलिटी एक्सरसाइजेज बहुत जरूरी है। हाँ, एक रूटीन में भी होना चाहिए साइक्लिस्ट को, रिस्ट स्ट्रेचिंग बहुत जरूरी है, स्पेशली फ्लेक्सर्स, ये मसल्स होते हैं फ्लेक्सर्स, ये इसको ये स्ट्रेचिंग करने की जरूरत है बहुत। ठीक है, एल्बो एक्सटेंडेड हो और ये स्ट्रेच करने की जरूरत। लास्टली मैंने देखा है मायोफेशियल रिलीज, ये एक टेक्निक है जिसको मायोफेशियल मतलब हम बोलते हैं मसल के ऊपर जो कवरिंग है उसको फेशिया बोलते हैं। तो जो स्ट्रक्चर मसल को कवर करते हैं उसको मायोफेशियल बोलते हैं। आजकल ये टर्म बहुत यूज में है मायोफेशियल। आज एथलीट आते हैं फिजियोथेरेपिस्ट के पास, कहते हैं रिलीज कर दो सर, बहुत टाइट है बॉडी। तो फिजियोथेरेपिस्ट फोकस इसी पे करते हैं, क्योंकि स्ट्रेचिंग तो मस्कुलर स्ट्रेचिंग एथलीट कर लेते हैं, लेकिन मायोफेशियल स्ट्रेचिंग करना मुश्किल होता है। सो मायोफेशियल, पहले मैं मायोफेशियल की बात करता हूँ। तो इसके लिए आई रिकमेंड फोम रोलर। फोम रोलर क्या है? एक फोम है, उस पे वो सिलिंड्रिकल शेप में है, आप ये देख रहे हैं ब्लू स्ट्रक्चर जो एक साइक्लिस्ट कर रही है, ये रोलर है। इस रोलर को टेक्निकली हम बोलते हैं मायोफेशियल रिलीज रोलर, मतलब मसल और फेशिया को रिलीज। तो ये बेसिकली एक मसाज टेक्निक है। आज मैं बात करूं पर्सनली, अगर मैं 12 साल से स्पोर्ट्स में काम कर रहा हूं, तो सबसे ज्यादा कमी है तो मैश्योर की कमी है, मसाज थेरेपिस्ट की कमी है। ठीक है। और दूसरी बात, वो है भी तो लेकिन बहुत एक्सपेंसिव है, बहुत सारे एथलीट के अप्रोच में नहीं है, उतना पैसा नहीं खर्च कर सकते। जो कि अगर हम बात करें स्टेट लेवल टूर्नामेंट की बात करें, और जहाँ पे मास पार्टिसिपेशन है, बहुत ज्यादा पार्टिसिपेशन है, एक फिजियो है, 1000 एथलीट है, वो स्ट्रेचिंग नहीं कर सकते, रिलीज नहीं कर सकते। तो आई पर्सनली रिकमेंड ये जो टूल है हर इंडिविजुअल एथलीट के पास होना चाहिए। सो अगर ये करना आ गया तो आपको ऑलमोस्ट 50 to 60% आप खुद को बॉडी को रिलीज कर सकते हो, मायोफेशियल कंडीशन को रिलीज कर सकते हो। और ये साइक्लिस्ट में जो कॉमन मसल्स हैं वो साइक्लिस्ट को करने की जरूरत है, वो मिड बैक, ग्लूट एरिया, क्वाड्रिसेप्स, हैमस्ट्रिंग, हिप एब्डक्टर्स जिसको हम आईटी बैंड और टीएफएल कहते हैं, और गैस्ट्रोसोलियस। ये सारे एरिया साइक्लिस्ट के लिए फोम रोलर एक बहुत यूजफुल रिलैक्सेशन टेक्निक है। तो फोम रोलर करने का तरीका है, इसमें कुछ नहीं है, बॉडी वेट ही यूज करना होता है। आप ये देखो, पेल्विक ब्रिज करना है और ये रोलर को नीचे मूव करना है। बहुत सारे लोग, आप लोग जानते होंगे क्योंकि आप लोग इंटरनेशनल कोच हैं, इंटरनेशनल एथलीट के साथ काम करते हैं। तो अभी भी ये लो लेवल स्पोर्ट्स जहाँ पे टूर्नामेंट डिस्ट्रिक्ट लेवल के हो रहे हैं या यूनिवर्सिटी लेवल टूर्नामेंट हो रहे हैं, इंटर कॉलेज लेवल टूर्नामेंट हो रहे हैं, अभी भी अवेयर नहीं है एथलीट इसको। तो मैं सजेस्ट करूंगा ये आप अपने एथलीट को रिकमेंड करो, और इसको लर्न करना बहुत डिफिकल्ट नहीं है। आपको टर्म पता होना चाहिए, टर्मिनोलॉजी पता होना चाहिए। यूट्यूब पे क्लिक करो कि फोम रोलर फॉर बैक, मिड बैक, आपको वीडियो आ जाएगा और वो फॉलो करना है।
सब आजकल तो सारा टेक्नोलॉजी बेस्ड है, तो हमें लेकिन कुछ ना कुछ इम्प्लीमेंटेशन कहाँ से न्यू टेक्निक आया वो जानने की जरूरत है। तो फोम रोलर हमें ब्रिजिंग के साथ करना है, क्वाड्स को करना है। सो बेसिकली पिक्चर बेस्ड है, ज्यादा कुछ नहीं है इसमें। हैमस्ट्रिंग को रिलीज करने का टेक्निक है। आईटी बैंड, रनर्स नहीं प्रिवेंट कर सकते हो, साइक्लिस्ट नहीं प्रिवेंट कर सकते हो इसके साथ, जब आईटी बैंड बहुत टाइट हो जाता है। गैस्ट्रोसोलियस और काफ मसल, सो दीज आर द मायोफेशियल रिलीज टेक्निक जो साइक्लिस्ट को ना कूल डाउन के टाइम करने की जरूरत है। तो मैं रिकमेंड करूंगा, मैंने एक किट कंटेंट भी बनाया है कि टीम के साथ क्या किट कंटेंट होना चाहिए। अगर टीम है जहां ये प्रैक्टिस करते हैं, उनके पास तो छोटा सा एक चेकलिस्ट है, आप जाओ, रेजिस्टेंस बैंड, ट्यूब, ऑलमोस्ट आजकल हर एथलीट के पास होता है। फिजियो बॉल और बैलेंस बॉल को है लेकिन यूज नहीं कर रहे, उसको यूज करने की जरूरत है। मेडिसिन बॉल है, मुझे पता है एनआईएस सेंटर में ये सारी चीज है, लेकिन अभी भी एथलीट ना प्रॉपर यूज नहीं कर रहे, इसकी जितना यूज होना चाहिए वो कम हो रहा है। फोम रोलर बहुत कम लोग यूज करते हैं। मेरे सेंटर पर मैं पिछले 5 साल से है मेरे पास। अब मैं बताता हूँ, 100 एथलीट में से 2 एथलीट आता है, उसको इम्पोर्टेंस पता है, जिसको इम्पोर्टेंस पता है वो करता है, बाकी नहीं करते। सो ये अवेयरनेस, हमें ये सब चीज को, छोटे छोटे चीज है लेकिन बहुत यूटिलिटी है इसका। अगेन एक बैलेंस पैड होता है जो बैलेंस एक्सरसाइज के लिए होता है। बेसिकली अगर हम कहें बैलेंस पैड कुछ नहीं है, आप पिल्लो पे खड़ा कर दो, तो बैलेंस पैड इज अगेन इंजरी प्रिवेंशन टूल है। हमें कुछ नहीं, उस पे सिंपल अगर थोड़ा सा स्क्वाट को स्क्वाट करवाते हैं हम यूजुअली, थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल बढ़ाना है तो पहले उसको बैलेंस पैड पे करा दो, या तो नहीं तो बोलो घर पे जाके पिल्लो पे स्क्वाट करके देखे, ठीक है। तो वो इस तरह का बैलेंस पैड होता है, उसमें भी बहुत सारे एयर फील्ड बैलेंस पैड है और लाइक फोम बेस्ड बैलेंस पैड है। तो ये सारे टूल हैं जो हमें टीम के साथ होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, ऑर्गेनाइजर की और जो भी एडमिनिस्ट्रेशन है वो मेक श्योर करें कि 2 चीज जरूरी है, दैट इज अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर और आइस। दीज 2 थिंग्स आर लाइफलाइन फॉर एथलीट। बिना पानी के इंजरी होएगा, आइस है तो इंजरी को हम जल्दी से जल्दी ठीक कर सकते हैं, इन्फ्लेमेशन स्वेलिंग को जल्दी से जल्दी सबसाइड कर सकते हैं। जितना जल्दी इन्फ्लेमेशन सबसाइड होएगा, स्वेलिंग कम होएगा, उतना वो जल्दी हील होएगा। एंड द लास्टली इज फर्स्ट एड बॉक्स, उसमें जरूरत के सामान, अगर साइक्लिस्ट हैं तो इसमें एंटीसेप्टिक क्रीम, लोशन, ठीक है, बैंडेड, गॉज, ये सब होने की जरूरत है। ये तो ऑलमोस्ट होता ही है क्योंकि उसके बाद प्लेयर्स चेकलिस्ट। प्लेयर चेकलिस्ट में इंडिविजुअल प्लेयर्स के पास, अब कभी जैसे रोड रेस हो रहा है या जहाँ पे 2-3 ग्रुप में चल पड़ते हैं, तो उन केस में एटलीस्ट 1-2 टूल तो होना चाहिए जो आपको इंजरी पे हेल्प कर सके, ठीक है। सो उसमें मैं कहूँगा एक कूल स्प्रे होना चाहिए और एक एंटीसेप्टिक स्प्रे, 2 चीज, ठीक है। अब आइस तो कैरी नहीं कर सकते तो उसका ऑल्टरनेटिव वी हैव कूल स्प्रे, ठीक है। वाटर बोतल तो ऑलमोस्ट हर साइक्लिस्ट के पास होता है। और एक एथलेटिक रैप। रैप क्या होता है, मतलब कि हम बेसिकली कंप्रेशन करना है, उसको दबाव डालना है। तो रैप किसी फॉर्म में, जो क्रेप बैंडेज को भी हम रैप बोलते हैं, एथलेटिक रैप बोलते हैं। आजकल बहुत सारे सेल्फ, मतलब बिना पिन के ही वो रैप लग जाता है, एक राउंड किया और एक दूसरे पे वो पेस्ट हो जाता है, तो इस तरह से उसको हम एथलेटिक रैप बोलते हैं। तो एथलेटिक रैप, अब ये है कि क्रेप बैंडेज में आपको वेरिएशन है, 2 इंच का लेना है, 4 इंच का लेना है, 6 इंच का लेना है, कौन सा रखें। एथलेटिक रैप एक ऐसा वो बैंडेज है, उसमें आपको कहीं भी किसी जॉइंट पे, किसी भी स्ट्रक्चर पे लगा सकते हैं।
foam roller. So these are the condition. इससे पहले एक दो स्लाइड मैंने मिस किया है, उसके बारे में बात करूंगा. हाँ, the injury management, we all know the importance of rise, foam cushion. हाँ, तो price which P stand for protection or prevention, R stand for rest, I stand for eyes. Sorry, it's 40 minutes off है, not 440 minutes. C for compression, E for elevation, R for referral or rehabilitation. So we follow this, and so उसके अलावा हम बात करते हैं. अब सपोज करो द पियर प्रिंसिपल एक प्रिंसिपल है, उसमें होता क्या है, हमें चोट लगती है तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले रबिंग करते हैं. रबिंग इज हार्म फैक्टर. रबिंग बेसिकली यूर रबिंग मीन्स जनरेटिंग हीट और होएगा उस एरिया में, हीट होएगा तो स्वेलिंग ज्यादा होएगा. तो पर्सनली वहां पे आई रिकमेंड किया, कोई भी रिकमेंड करेगा एज ए मेडिकल प्रोफेशनल, रब नहीं करना, उसको प्रेशर अप्लाई करना है. ठीक है, हमें छोटे बच्चों को भी चोट लग जाते हैं ना तो हम फटाफट रब करते हैं. डोंट रब इट, अप्लाई प्रेशर, दबाव डालना है. ठीक है, उसके बाद आइस, एलिवेशन और रेस्ट्रिक्शन. ठीक है, तो ना कुछ है तो दबाव कम से कम डालो, इसलिए एथलेटिक रैप की इंपॉर्टेंस है. ठीक है, कूल स्प्रे का यही इंपॉर्टेंस है कि पहले स्प्रे कर दिया फिर रैप कर दिया, तो दो चीज आपकी पूरे हो गए, आइस और कंप्रेशन. एंड द एलिवेशन इज नॉट पॉसिबल एवरीवेयर, सब जगह नहीं होता, लेकिन रेस्ट्रिक्शन अगेन थर्ड स्टेप. तो दो चीज आपके, प्रेशर भी अप्लाई कर दिया, एलिवेशन भी हो गया, रिस्ट्रिक्शन भी हो गया. तो ये तीनों चीज अवेलेबल हो सकता है कहीं भी, सिर्फ दो टूल से, कूल स्प्रे और एथलेटिक रैप से. ठीक है, सो व्हेन इंजरी ऑकर्स इट शुड बी डायग्नोस्ड एंड ट्रीटेड बाय स्पेशलिस्ट. कोई भी स्पेशलिस्ट हो, चाहे वो स्पोर्ट्स फिजिशियन हो, चाहे स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपिस्ट हो, और दे आर वर्किंग इन स्पोर्ट्स बैकग्राउंड, मतलब कि स्पोर्ट्स सेंटर में काम कर रहे तो उनकी थोड़ी सी अप्रोच है वो अलग हो जाती है. अगर नॉर्मल हॉस्पिटल में वर्क कर रहे हैं तो उनका अप्रोच थोड़ा सा, जो जहाँ काम करता है वो वैसा ही अप्रोच हो जाता है. तो आई पर्सनली सजेस्ट कि आप ना, इंजरी होते हैं तो अपने एथलीट को जो स्पोर्ट्स बैकग्राउंड में काम कर रहे हैं वहीं पे कंसल्टेशन कराओ, तो वो ज्यादा हेल्पफुल होएगा एथलीट के लिए. सो एंड द लास्टली मैं कहूँगा कुछ नहीं कर सकते तो उस इंजरी को हमें हार्म करने की जरूरत नहीं है. हार्म स्टैंड फॉर एज फॉर हीट, सेक नहीं करना एक्यूट कंडीशन में, अल्कोहल कंज्यूम नहीं करना है, रनिंग नहीं करना है, जैसे कहते हैं चल यार थोड़ा सा 2 पैग लगा लेते हैं, दर्द कम हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, तो वो दीज आर द हार्म फैक्टर. आर फॉर रन, रनिंग नहीं करना, मतलब उसको रेस्ट देना है उस पार्ट को. तो अवॉइड रनिंग एंड द मसाज. लास्ट जो मैंने फ्रिक्शन बोला था, चोट लगती है हम फटाफट रबिंग करने लगते हैं, तो मसाज नहीं करना. तो डू नॉट हार्म. सो फोम रोलर में से के बैलेंस एक्सरसाइज बहुत अच्छा, और कोर स्ट्रेंथनिंग. आप जब देख रहे हो इस इमेज में, फोम roller is under the upper back, and only lifting of pelvis can strengthen the whole abdominal area, surrounding muscles, even the leg muscle, calf के एरिया भी है वो भी strengthen हो जाता है. तो ये बहुत अच्छा टूल है. ये स्पेशलिस्ट साइक्लिस्ट को रिकमेंड करो, अपने साइक्लिस्ट को आप रिकमेंड करो. ये फुल स्पाइन एक्सटेंशन एक्सरसाइज है, एज वेल एज हैमस्ट्रिंग, काफ. ठीक है, तो इससे कोर एक्सरसाइज हो गया. और बैलेंस ट्रेनिंग हम इसलिए बोलेंगे क्योंकि बैलेंस हो रहा है कि पर्सन जो लिफ्ट कर रहा है वो अनस्टेबल सरफेस है. तो इस तरह से आप फोम रोलर का यूज नॉट ओनली सेल्फ मायोफेशियल या मतलब मसाज के लिए यूज कर सकते हैं, उसका यूज हम स्ट्रेंथनिंग में भी कर सकते हैं, बैलेंस ट्रेनिंग में भी कर सकते हैं, और कोर स्ट्रेंथनिंग ट्रेनिंग में कर सकते हैं. दैट्स ऑल.
थैंक यू। सर एनी क्वेरी? Thank you, Rakesh sir. Really, it was a very informative session on common injuries related to cycling sports. थैंक यू सर। And still, if anyone is having any question, तो आप पूछ सकते हैं। बट एक रिक्वेस्ट है कि क्योंकि ऑलरेडी हम थोड़ा सा डिले हो गए और नेक्स्ट क्लास है हमारा जो टाइम स्लॉट था दैट वाज फ्रॉम 11:30 to 12:30. Already we are 15 to 20 minutes late, but still we can manage it. Someone is having some question, so you are most welcome without any delay. Any question from the audience? Express something, sir. Jimmy, sir, can I express something? सर यस सर। सर आपका राकेश जी का बहुत अच्छा था, प्रिकॉशन और प्रिवेंटिव मेजर और इंजरीज के लिए क्या क्या हमारे हैजार्ड्स होते हैं और कैसा प्रिवेंटिव मेजर बहुत अच्छी थी। एक स्पेसिफिक इंजरी के लिए क्या स्पेसिफिक ट्रीटमेंट है वो सारा भी बहुत अच्छी तरह से बताया। कुछ चीजें it is in line with the injury. If Jimmy permits, may I take 1 or 2 minutes for that, sir? Sir, please go ahead. Please go ahead. Sir, there are injuries which occur. These are not in. You will not find these in books. For example, कभी-कभी ट्रैक में हमारे ट्रैक राइडर चलाते हैं, जो लाइन होती है, पेंटेड लाइन होती है, उसके ऊपर दोनों चक्के आ जाते हैं तो साइकिल नीचे स्किड करता है एक साथ, और उसमें अगर लूज अगर अच्छी तरह से ट्यूबलर नहीं लगा होता, ट्यूबलर उतर जाते हैं, एक्सीडेंट हो जाता है। ये एक दिस इज वन ऑफ द थिंग्स व्हिच वी एक्सपीरियंस्ड। सेकेंडली, कभी-कभी राइडर्स लॉन्गर क्रैंक यूज करते हैं। एक्चुअली 65 होती है, 165 और 172 या इस तरह की लगा लेते हैं, ऊपर से पैडल भी लंबा लगा लेते हैं, तो राइट साइड कर्व में वो टच करता है और उसमें भी ट्रैक साइकिल गिर जाते हैं। I hope coaches are taking care of those things also. Thirdly, एक बहुत बड़ी कॉमन इंजरी हो जाती है लूज ट्रैक सूट, जो नीचे से लोअर पार्ट नीचे से खुला होता है या अपने फीते बांधता है और लंबे लंबे लटके होते हैं। वो कभी कभी वार्म अप के टाइम में चलाता है तो उसका फीता क्रैंक वाले गियर में घुस जाता है और वो क्रैंक को वो प्लेट को टेढ़ी कर देता है, चेन उतर जाती है, उससे भी एक्सीडेंट होते हैं। ऐसा भी हम लोगों ने दिया। वो सारा भी नए राइडर और कोचेस को थोड़ा सा केयर करना चाहिए, ऐसा मैं समझता हूँ। उसके बाद इसके पहले बताया गया था कि मील्स वगैरह जो है वो 2 घंटे 3 घंटे पहले हो तो अच्छा है, क्योंकि उसका तब नहीं पता चलता, कुछ उम्र हो जाती है तब पता चलता है। किसी को गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम आ जाती है, किसी को कुछ पेट के विकार आ जाते हैं। अगर शुरू से ही उसकी प्रिवेंशन ली जाए तो राइडर एक हेल्दी रहता है थ्रू आउट। एक चीज और हम लोगों ने एक्सपीरियंस किया है, कभी कभी प्रैक्टिस में या कंपटीशन में बारिश हुई होती है तो जगह जगह रोड पर पानी खड़ा होता है, तो अगर साइकिलिस्ट पूरी तरह उसकी बॉडी गर्म है और साइकिल उस पानी के बीच से चला जाता है तो पानी स्प्लैश करके उसके काफ और थाई मसल में गिरता है और उसमें सडन क्रैम्पिंग या इस तरह की चीज हो जाती है, तो उससे भी थोड़ा केयरफुल रहें। ये ऐसा भी हम लोगों को अपने राइडर्स को बताना चाहिए। और ट्रैक के साइकिल को रोड में ज्यादा ट्रेनिंग के लिए नहीं भेजना चाहिए। अभी आपने बताया कि उसमें नर्व इंजरीज की चांसेस है, वो क्योंकि उसमें उसका आगे से फॉर्क बेंड नहीं होता है और शॉक नहीं ले सकता और उसकी सीधी वाइब्रेशन हाथ के में होकर स्पाइन में और सिर में जाती है, वो भी अनहेल्दी होती है। ये छोटी छोटी बातें जो these are not in books, so I thought of sharing with you. These are the practical points. Yes, that's all, sir. Thank you very much. हाँ, थैंक यू अवतार सर। रियली आपने जो ये पॉइंट्स बताए बहुत ही वैलिड पॉइंट है, और जो एक प्रैक्टिकली साइकिलिस्ट फेस करता है वो प्रॉब्लम्स है, जो फील्ड में प्रॉब्लम्स आती हैं उनको, और ये छोटी छोटी चीजें हैं जिससे कि हम इंजरीज या एक्सीडेंट्स या इंसिडेंट्स को अवॉइड कर सकते हैं। यस, डेफिनेटली सभी कोचेस को ये पॉइंट्स बहुत ही ध्यान में रखने चाहिए। और अभी जिमी कोचा भी हमारे बीच आ चुके हैं, जो उनका काम था वो अपने अभी ज्वाइन कर चुके हैं, तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज वो आए और इस आज के सेशन को वाइंड अप करें। जिमी सर प्लीज।
Hello. Hello. Are you listening me, sir? Yes, yes. Okay. So thank you, Rakesh ji. You are with us and you Thank you, spare sir. some valuable time for us. And I again thank to Miss It is my privilege, sir. our our respected cycling coach, Miss Seema, who can encourage you and take your time for us. Thank you very much. And your lecture is very, very informative and very, very beneficial for the cycling, because in cycling so many injuries occur during the races, during the training, on the track, on the road, and the rehabilitation process is very, very poor in India. So your price formulas and the other abilities you can show us, see how we can make ourselves part of relaxation and how to overcome the injuries. That is much more important. And thank you very much. You can deliver the lecture very patiently, and what step by step you can discuss with us. And I hope our coaches, our Sai coaches, and our another respectable people who are joining with us today are take so many measures from your lecture. Thank you very much. You should spare some time for us. And once again, I thank you to you and all the our